تشریف رکھنے سب بیٹھ جائیں. کی لگا کتاب جو خداوند کا کلام اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں وہ ضرور کھول لیجیے میرے ساتھ. ہم آج خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے جو تلاوت کریں گے یوحنا کی انجیل اور اس کا 13 باب اور اس کی 21 آیت. نکال لیجئے سب خدا کے کلام کو. یوحنا کی انجیل اور اس کا 13 باب اور اس کی 21 آیت. خدا کے کلام میں لکھا ہے، یہ باتیں کہہ کر یسوع اپنے دل میں گھبرایا اور یہ گواہی دی کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑوائے گا. شاگرد شبہ کر کے کہ وہ کس کی نسبت کہتا ہے ایک دوسرے کو دیکھ لیں. اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص جس سے یسوع محبت رکھتا تھا یسوع کے سینہ کی طرف جھکا ہوا کھانا کھانے بیٹھا تھا. بس شمعون پطرس نے اس سے اشارہ کر کے کہا کہ بتا تو وہ کس کی نسبت کہتا ہے. اس نے اسی طرح یسوع کی چھاتی کا سہارا لے کر کہا کہ اے خداوند وہ کون ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ جسے میں نوالا ڈبو کر دے دوں گا وہی ہے. پھر اس نے نوالا ڈبویا اور لے کر شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کو دے دیا. اور اس نوالا کے بعد شیطان اس میں سما گیا. بس یسوع نے اس سے کہا کہ جو کچھ تو کرتا ہے جلد کر دے. مگر جو کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے کسی کو معلوم نہ ہوا کہ اس نے یہ اس سے کس لیے کہا. چونکہ یہودا کے پاس تھیلی رہتی تھی اس لیے بعض نے سمجھا کہ یسوع سے یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہمیں عید کے لیے درکار ہے خرید لے یا یہ کہ محتاجوں کو کچھ دے. بس وہ نوالا لے کر فی الفور باہر چلا گیا اور رات کا وقت تھا. خدا ان کا زندہ پاک نام پڑھا سنا اور سمجھا قبول کیا جائے ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خدا ان کے کلام پڑھے سنیں اور سمجھے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو. تو میرے بچوں خدا کے کلام میں سے جو ہم نے آج تلاوت کی ہے اور وہ خدا کے کلام میں لکھا ہے یہ باتیں کہہ کر یسوع اپنے دل میں گھبرایا اور گواہی دی اور کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں ایک شخص مجھے پکڑوائے گا. اور میرے عزیزوں میرے بچوں آج کا جو مضمون ہے وہ ہم یہودا اسکریوتی کی زندگی پر غور کریں گے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ابلیس اس میں سما گیا. اور آج کا جو مضمون ہوگا جو ٹاپک ہوگا ہمارا وہ یہی ہوگا ابلیس کا فرق لانا اور اس کا سما جانا. دو پہلو ہیں. ان دو پہلو پر ہم سوچیں گے کہ ہم جو ہیں ہم کس طرح اس سب سے مشکلوں سے پریشانیوں سے یا ابلیس کے منصوبوں سے کیسے نکل سکتے ہیں کیسے سامنا کر سکتے ہیں. کیونکہ یہودا اسکریوتی یہ خدا کے ساتھ رہتا تھا. خدا کی ہر بات کو ہر کلام کی آیت کو یہ جانتا تھا لیکن پھر بھی اس سے مسٹیک ہوئی. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے یہ باتیں کہہ کر یسوع اپنے دل میں گھبرایا اور گواہی دی کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑوائے گا. شاگرد شبہ کر کے کہ وہ کس کی نسبت کہتا ہے ایک دوسرے کو اشارہ کر کے وہ پوچھنے لگے. یہ وہ جگہ ہے یہ اس مقام پر بیٹھے ہیں
जो रस्म हम आज करने को हैं, ये सब बाला खाना के अंदर बैठे हुए हैं और वो बाला खाना में जो रस्म अदा कर रहे हैं, जो बादशाह की रस्म मसीह दीन के अंदर वो आई, वो यहाँ से उसका आगाज हुआ। और यहाँ खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ बैठकर बाला खाना के अंदर रोटी तोड़ रहे हैं, पैर धोने की रस्म कर रहे हैं। और ये रस्म करते करते खुदावंद यीशु मसीह ने पेशन गोई की। और पेशन गोई क्या की? तुम में से एक शख्स मुझे पकड़वाएगा। और ये जो यहूदा है, यूहन्ना है, ये यूहन्ना खुदा के सीने का सहारा लेकर, मेरे बच्चों गौर से मेरी बात सुने, सीने की तरफ झुका हुआ और खाना खाने बैठा है, सीने के साथ लगा, सीने के साथ इतना करीब है। और खुदा के कलाम में लिखा है जिससे वो अजीज रखता था, मोहब्बत रखता था। इसका मतलब है यूहन्ना अपना नाम नहीं लिख रहा, यूहन्ना अपना नाम नहीं लिख रहा, क्योंकि यूहन्ना की अंजील भी तो यूहन्ना खुद लिख रहा है। लेकिन वो कह रहा है एक शख्स जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, जिससे यीशु अजीज रखता था, अपना नाम मेंशन नहीं कर रहा, लेकिन अपना तारीफ करा रहा है कि वो मैं ही हूँ। और ये यूहन्ना यीशु की छाती के साथ लगकर क्या कर रहा है? बैठा हुआ है। और पतरस रसूल ने उसे इशारा किया, इशारा करके पूछा कि बता, ये पूछ इससे कि यीशु किसकी निस्बत करता है। और इसी तरह यूहन्ना झुककर यीशु की छाती का सहारा लेकर कहता है, ऐ खुदावंद वो कौन है? तो यीशु ने खुलम खुला उनके सामने पेशन गोई कर दी। और वो पेशन गोई क्या थी? पेशन गोई ये थी कि एक शख्स जिसके मुंह में मैं शीरे के अंदर नवाला डबोकर जिसके मुंह में मैं डालूंगा वो भी होगा। यीशु मसीह ने तो कोई छुपाने की बात ही नहीं की, उसने खुलम खुला उसका ऐलान कर दिया। और फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा में यीशु ने नवाला लिया और डबोकर यहूदा अस्करियोती के मुंह में डाल दिया, जो शमौन का बेटा था। और जैसे नवाला उसे दिया गया तो फिर लिखा है शैतान उसमें समा गया, शैतान उसमें समा गया। आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे, जाना और शैतान का वर्गलाना। और मेरे चीजों, तस्वीर की हम दूसरी तरफ देखेंगे। जब हम पैदाइश पढ़ते हैं तो सांप जस्ती जानवर में चिराग और होशियार था। तो जब बाकी अदन के अंदर सांप जाता है तो इब्लीस ने सांप का रूप नहीं इख्तियार किया, बल्कि क्या किया? वो सांप में समा गया। इसका मतलब है, मैं आपको सादा देना चाहता हूं, बेशक इंसानी बदन हो, हवानी बदन हो या जानवरों के बदन हो, इब्लीस समा जाता है। और समा कर करता क्या है? वो जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। और जब इब्लीस समा जाता है तो हमें किस तरह उसका सामना करना चाहिए, किस तरह हम उसके मंसूबे को समझ सकते हैं, किस तरह हम उसके मंसूबे से निकल सकते हैं, इसलिए हमें आज गौर करने की जरूरत है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि सुनने से ईमान पैदा होता है। सुनना, जो मसीह का कलाम सुनता है वो मेरे बच्चों, वो मेरे बेटियों, वो मेरे बेटों, वो उस मंसूबे से निकल जाता है। लेकिन जो शख्स बाइबल से हटा हुआ होता है, जो खुदा के कलाम को गौर से नहीं सुनता, जो खुदा के कलाम को अपने अंदर स्टोर नहीं करता, अपने दिल में नहीं रखता, जो नहीं कहता खुदा का कलाम मेरे राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है, वो यहूदा अस्करियोती की तरह फंस जाते हैं। यहूदा अस्करियोती की तरह फंस जाते हैं। लेकिन आज हमने सीखना है कि इब्लीस का समा जाना और इब्लीस का वर्ग लाना ये क्या है। मेरे जीजो, फिर खुदा के कलाम में लिखा है इब्लीस उसमें समा गया। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला नंबर ये है कि जब खुदा की हजूरी होती है इब्लीस समाता नहीं है, इब्लीस समाता नहीं है। अगर समा जाए तो ठहरता नहीं है, अगर समा जाए तो वो ठहरता नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है कि जैसे उसे नुमाला दिया गया और इब्लीस उसमें समा गया, शैतान उसमें समा गया, और वो आगे लिखा है वो फिल फौर उसी वक्त उठ के वो भाग गया, क्योंकि इब्लीस जो शैतान है वो खुदा यीशु की हजूरी को बर्दाश्त नहीं कर सकता।
اس لیے نوالا جیسے اسے دیا گیا وہ فل فور اٹھ کر بھاگ گیا۔ آج ہم نے یہودا اسکریوتی کی زندگی پر غور کرنا ہے کہ یہودا اسکریوتی کے ساتھ ہوا کیا تھا، تاکہ کیوں اس نے یہ منصوبہ کر لیا، کیوں اس نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں جو ہوں یسوع کو پکڑواؤں گا۔ تاکہ اس لیے میرے عزیزو ہم میں کوئی نہ کوئی، میرے بچوں، میرے بیٹیوں اور بیٹوں، کوئی نہ کوئی ہم میں کمی ہوتی ہے۔ وہ کمی کیا ہوتی ہے؟ اس کمی کی وجہ سے ابلیس جو ہے ہمیں پکڑتا ہے۔ اور اس میں کمی کیا تھی؟ اس کے پاس تھیلی رہتی تھی۔ خدا یسوع جب خدمت کے لیے نکلتے تھے تو اس کے پاس تھیلی تھی، روپیہ پیسہ سب اس کے پاس تھا۔ جو 11 شاگرد تھے وہ بھی گلیلی تھے، اور یہ بارواں جو تھا یہ باہر سے آیا اور نہایت پڑھا لکھا، نہایت ہوشیار، چلاک اور قوم کا ماسٹر بندہ تھا۔ اس لیے خدا یسوع نے اسے تھیلی دے دی تاکہ یہ لکھ پڑھ کا کام، سارا قوم کا کام تو ہی سنبھال۔ اور اس کے اندر کمی تھی، اس کمی کی وجہ سے ابلیس نے ادھر ادھر دیکھا اور دیکھ کر اس میں دیکھا کہ اس میں کمزوری ہے، یہ میرے ہاتھ آسانی سے لگ جائے گا۔ اور میرے عزیزو اس نے وہی کیا، اس نے وہی کیا۔ اب اس نے خدا یسوع کو پکڑوانے کا سوچنا تھا، اور خدا کو پکڑوانے کے لیے اس نے اپنا منصوبہ کرنا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہوا کیا ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ متی کی انجیل میرے ساتھ نکال لیجئے جن کے پاس خدا کا کلام ہے۔ متی کی انجیل اس کا 26 باب اور اس کی 14 سے 16 آیت تک ہم خدا کے کلام میں دیکھیں گے۔ اور لکھا ہے خدا کے کلام نے، اس وقت ان باز میں سے ایک نے جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا سردار کہنوں کے پاس جا کر کہا کہ اگر میں اسے تمہارے حوالے کر دوں تو مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے اسے 30 روپے تول کر دے دو تاکہ وہ اس وقت سے اسے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا۔ میرے عزیزو ابھی جو میں بات کرنے والا ہوں، ابھی ابلیس اس کے اندر سمایا نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو نوالا دیا یہ نہیں کیا۔ اور یہ نوالے کے پہلے جو ہے یہ سردار کہنوں کے پاس چلا گیا ہے، اور سردار کہنوں کے پاس جا کر کہتا کیا ہے؟ اگر میں اسے تمہارے حوالے کر دوں تو مجھے کیا دو گے؟ تو مجھے کیا دو گے؟ اس لیے میرے بچوں، تاکہ ابھی ابلیس سمایا نہیں ہے، ابھی ابلیس نے اسے مسا دیا ہے، کیونکہ ایک خدا کے کلام کو لکھنے والا ہے اور ہم تک پہنچانے والا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ چوری کرنے والا ہے، وہ چوری کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے بچوں ابھی ابلیس سمایا نہیں اس کے اندر، تاکہ ابلیس نے اسے مسا دیا ہے۔ جیسے خداوند یسوع کے کلام میں لکھا ہے کہ میں دوسرا مددگار تمہیں بھیجتا ہوں، تاکہ وہ کیا کرے گا؟ وہ تمہارے اندر رہے گا اور تمہارے ساتھ رہے گا۔ اب اگر تم کہیں بچ جاؤ گے، اگر تمہیں کسی پریشانی ہوگی، دکھ میں ہوگے، تکلیف میں ہوگے، اور تمہیں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرو گے، تو بولنے والے تم نہیں بلکہ میرے باپ کا روح ہوگا۔ تو یہ دوسرا رخ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ ابلیس بھی زندگیوں میں سما جاتا ہے، ابلیس بھی زندگیوں میں سما جاتا ہے، اور ابلیس نے ابھی سمایا نہیں ہے، ابلیس نے مسا دیا ہے۔ جیسے خدا کا روح ہمیں مسا دیتا ہے، جسے برکت دیتا ہے، جیسے ہمیں ٹچ کرتا ہے، ابھی ابلیس نے اسے ٹچ کیا ہے، مسا دیا ہے۔ اور یہ مسا ابلیس کا ذرا مختلف ہوتا ہے۔ یہ مسا کیسا ہوتا ہے؟ وہ ہمیں اپنی سوچ کے، جو ہماری سوچ ہوتی ہے، اس سوچ کو پکڑ کے مسا دیتا ہے۔ اس سوچ کے ذریعہ سے وہ ہمیں ایسی کنفیوژن میں لے جاتا ہے کہ ہم گناہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے جو ایسے لوگ ہیں، خدا کا کلام بیان کرتا ہے، وہ شریر کے فرزند ہیں، وہ شریر کے بچے بن جاتے ہیں، وہ شریر کے لوگ بن جاتے ہیں۔ اس لیے تاکہ جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے، بس جتنوں نے قبول کیا خدا نے انہیں اپنا فرزند بننے کا حق بخشا۔ اسی طرح جو ابلیس کو چن لیتے ہیں وہ اس کے بچے بن جاتے ہیں، وہ اس کے فرزند بن جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بچوں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جیسے اسے مسا ملا، ابلیس نے اسے ٹچ کیا ہے، اس کی فیلنگ چینج ہوگی، اس کی سوچ چینج ہوگی، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کر کیا رہا ہے؟ وہ یہودیوں کے سردار کہنوں کے پاس جاتا کہتا ہے کہ میں اگر اسے تمہارے حوالے کر دوں تو مجھے کیا دو گے؟ اس نے کہا 30 روپے تول کی۔
20 रुपए तोल कर दे देंगे और ये उसकी कीमत है। तो ये उसकी कीमत के बारे में हम खुदा के कलाम में सोचेंगे और पढ़ेंगे आगे जाके, ये कीमत तो असल से उसकी लिखी हुई थी, ये कीमत उसकी असल से लिखी हुई थी। वो वहां बहस कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है, ताकि क्या कर रहा है कि वो कहते हैं कि रेट बताओ, उनसे बहस कर रहा है, लेकिन उसने उसकी कीमत क्या लगाई है? 30 रुपए। 30 रुपए उसकी कीमत लगाई है और ये कीमत तो असल से उसकी कीमत लिखी हुई थी, इसलिए ताकि ये अभी उसे मसा मिला है, उसे मसा मिला है, उसकी फीलिंग चेंज हो गई है, उसकी सारी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई है। बेशक वो खुदा के कलाम को जानता था, वो खुदा के कलाम से वाकिफ था, लेकिन जब हमने इस बात को सोचना है, अपनी जिंदगी में रखना है, ताकि जब हमारी ऐसी सोच एकदम से तब्दील होती है, हम तब्दील हो जाते हैं, हमारी जिंदगी में जो ऐसी गुनाह के मंसूबे आ जाते हैं, तो आप समझ लीजिए, आप समझ लीजिए इब्लीस आपको टच करता है, इब्लीस आपको टच कर रहा है, और जैसे टच करता है आप घुटनों के बल हो जाए, आप घुटनों के बल हो जाए। ये बात ऐसे नहीं कही गई, ये खुदा के कलाम में आज हम सीखेंगे क्यों हमें घुटनों के बल होना चाहिए। हम खुदा के कलाम को देखेंगे, और इसलिए जब हम गौर करते हैं, जो ईमानदार है, जो ईमानदार है, जो यीशु के खून से धुले हुए हैं, मेरे बच्चों, वो इब्लीस ने उन सबको मांग लिया है। और कैसे मांग लिया है? जब हम यूब की जिंदगी पर गौर करते हैं, तो वो खुदा की हजूरी में चला जाता है, खुदा की हजूरी में जाके कहता है, तो खुदा उसे फक्र के साथ कहता है, मेरे बंदा यूब को देख, ये कितना अच्छा है, कि कितना मेरे साथ मुतफिक है, और कितना मेरे खुदा के मेरे कलाम के साथ ये चलता है। तो वो कहता क्या है? मैं एक ही सिर्फ बात करूंगा अपनी तबीयत और इंसियत के लिए। वो कहता है कि इसके जिगर तो तूने अपनी पाड़ लगाई हुई है, जरा इसे हटा तो मैं देखता हूं, मैं जरा इसे चेक तो करूं। तो खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा, मैं अपनी पाड़ हटा दूंगा, लेकिन तू उसकी जान नहीं ले सकता, तेरा उसका जिस्म तेरे हाथ में कर दिया। तो मेरे अज़ीज़ों, एक पुराने अहदनामे का अहद जो हवाला है कि ईमानदारों के बदन मांगे जाते हैं, और एक नए अहदनामे में हम देखेंगे डॉक्टर लूका की अंजील उसका 22 बाब और उसकी 31 आयत में लिखा है, शबाउन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है ताकि गेहूं की तरह तुम्हें फटके, इसलिए ताकि ईमानदारों के बदन मांगे जाते हैं, ईमानदारों के बदन मांगे जाते हैं। अगर आप समझें कि खुदा के साथ चलना बहुत आसान है और बड़ा सीधा रास्ता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर हमेशा की जिंदगी के वारिस होना चाहते हो, हमेशा खुदा के साथ रहना चाहते हो, तो फिर जागते रहना है और दुआ करना है, ताकि ईमानदारों को मांगा गया है। और हमें कैसे अपनी जिंदगी के अंदर गौर करना चाहिए। आए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे मत्ती की अंजील और उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत से। ये एक ऐसा हवाला है बाइबल के अंदर जो मेरे अज़ीज़ों, जो मेरे बच्चों, शैतान खुला खुदा के सामने आके खड़ा हो गया है, खुदा के सामने खड़ा होके सवाल करता है। और सवाल क्या करता है? खुदा के कलाम में से देखेंगे यूहन्ना की अंजील 4 बाब उसका पहली आयत लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर कहा, अगर तू खुदा का बेटा है कह कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा यीशु की बात कर रहे हैं, और खुदा के कलाम में लिखा है कि रूह यीशु को जंगल में ले गया। जैसे ईमानदार मांगे जाते हैं इब्लीस से आजमाने के लिए, परेशानी के लिए, ताकि ऐसे ही यहोवा खुदा ने अपने बेटे यीशु को भी इब्लीस के हवाले कर दिया, ताकि ये इब्लीस से आजमाया जाए, ताकि यीशु मसीह बाइबल मुकद्दस के अंदर हीरो है, वो हमारा मॉडल है, वो हमारा उस्ताद है, वो अच्छा चरवाहा है, ताकि उसने हर बात का हमें नमूना दिया है, ताकि तूने कैसे सीखना है, तूने कैसे इन सारी परेशानियों से, मुश्किलों से निकलना है। और सवाल क्या कर रहा है? अगर तू खुदा का बेटा है, अगर का मतलब है जिंदगियों में शक डाल देना,
अगर का मतलब है कंफ्यूज कर देना। और शक किसकी जिंदगी में डाल रहा है? खुदावंद यीशु की बात हो रही है। तो खुदावंद यीशु की जिंदगी पर गौर करें। वो कहता है अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो जवाब क्या मिला? जवाब क्या मिला? क्या जवाब मिला बेटा मेरे? कोई ऐसा नहीं जिसने ये हवाला सुना ना हो। हम सब ने ये हवाला सुना है। तो जवाब क्या मिला? मेरे साथ रहिए। यही मिस्टेक है हमसे, यही मिस्टेक है हमसे कि हम एक कदम आगे चले जाते हैं, उस बात पर गौर नहीं करते। जो गौर करने की बात है, खुदावंद यीशु ने कहा लिखा है। खुदावंद यीशु ने कहा लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकली है। लिखा है। तो लिखा कहां पे है? लिखा कहां पे है? सृष्टि की किताब उसके 3 बाब 8 बाब की 3 आयत में लिखा है। खुदावंद यीशु ने क्या कहा? खुदावंद यीशु मसीह ने बाइबल को खोल लिया। खुदावंद यीशु मसीह ने बाइबल को खोल के अपनी जात के अंदर जो हवाला लिखा था ना, इसलिए खुदा बाइबल मुकद्दस को लहाने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह तौरात की किताब अक्सर पढ़ा करते थे और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जात के अंदर जो लिखा हवाला था ना, बाइबल को खोल के उसे जवाब दिया। सृष्टि 8 बाब की 3 आयत में लिखा है आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहेगा। आदमी सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकली है। लिखा है। जब हम इस नुक्ते पर गौर करते हैं कि लिखा है, तो मेरे सीसो फिर हम आगे खुदा के कलाम को सीखेंगे। और फिर हेलो और खुदा के कलाम ने लिखा है, और मैंने सीसो फिर लिखा है तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा। फिर शक डाल रहा है खुदावंद यीशु की जिंदगी पर और कहता क्या है? अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा। लिखा है। अब इब्लीस क्या कर रहा है? शैतान क्या कर रहा है? इस बात पर गौर कीजिए। खुदावंद यीशु से कह रहा है अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा, क्योंकि लिखा है। क्या कहता है? लिखा है। अब शैतान क्या कर रहा है? शैतान क्या कर रहा है? शैतान ने भी बाइबल खोल ली है। शैतान बाइबल खोल के कह रहा है तेरी बाबत लिखा है, सबूर कान में निकाल। तेरी बाबत लिखा है, वो अब तेरी बाबत लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, वो तुझे अपने हाथों पे उठा लेंगे ताकि तेरे पांवों को पत्थर से ठेस ना लगे। तो मेरे सीसो, अब शैतान चालाक है, मकार है, उसने भी बाइबल खोली है। अब क्या कह रहा है? लिखा है। उसने खुदावंद यीशु मसीह के लफ्ज पकड़े। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा लिखा है आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। तो उसने आगे जाके देखा, इसने बाइबल खोली है, उसने भी बाइबल खोली है। उसने कहा कुंगरे पर खड़ा करके कहता है कि अपने ताई नीचे गिरा, क्योंकि लिखा है, तेरी बाबत लिखा है, तेरी बाबत लिखा है कि फरिश्तों को हुक्म देगा। तो मेरे सीसो, इस बात पे हमें गौर करने की जरूरत है कि इब्लीस कभी फेवर के साथ भी जिंदगियों में समा जाता है ताकि हमें उलझने परेशानियों में डाले। ये एक ऐसी बात है जहां हमने गौर करनी है। एक तरफ इंसान खड़ा है, एक तरफ खुदा खड़ा है, एक तरफ इब्लीस खड़ा है। जब इब्लीस को मौका मिलता है 24 घंटे के अंदर, वो इंसान को पकड़ता है और उसे ठीक तरीके से इस्तेमाल करता है। लेकिन जब इब्लीस जान छोड़ देता है, जैसे इंसान को होश आती है कि ये मेरे साथ क्या कर, मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ,
जैसे होश आती है वो फिर भागकर खुदा की हजूरी में आ जाता है। तो खुदा फिर क्या करता है, अपनी बाहें फैला कर कहता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी आ, क्योंकि मैंने तेरे लिए फिदिया दिया है। और फिर इंसान के साथ अगली 24 घंटे के दरमियान फिर इब्लीस को मौका मिलता है, तो इब्लीस फिर उसे बरगला लेता है। लेकिन ये सिलसिला जो है वो इंसान के साथ चलता रहता है। लेकिन लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर एक वक्त ऐसा आता है जा तो इंसान शैतान की तरफ चला जाता है, जा खुदा की तरफ आ जाता है। जब खुदा की तरफ आएगा तो रूल कुदस उसे पूरे तरीके से आगे कंट्रोल करेगा। अगर वो शैतान की तरफ चला जाएगा तो शैतान उसके जिस्म में पूरे तरीके से समा जाएगा। उसे कहा गया है ये शरीर के फरजंद है, ये इब्लीस के बच्चे हैं, और इब्लीस उन्हें ऐसे इस्तेमाल करेगा जिस्म इंसान का होगा लेकिन कंट्रोल सारा इब्लीस उसे करेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हमने अपने जिंदगी पर गौर करनी है, हमें गौर करनी है। आगे जाके लिखा है कि फिर उसे एक मुकद्दस शहर में ले गया, ठीक है ना। वो शहर के एक पहाड़ पर जाके खुदा यीशु को सब दुनिया की शानो शौकत दिखा के कहता है अगर तू झुक के मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे इख्तियार में है। तो खुदा यीशु ने फिर खुदा यीशु ने उसे यही हवाला दिया। इस्तिशना 6 बाब की 13 आयत में लिखा है कि तू सिर्फ खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर, सिर्फ उसी की इबादत कर, ऐ शैतान दूर हो। क्योंकि खुदावंद पहले भी कह सकता था, लेकिन पहले खुदा ने कहा सुन, कहते ना पंजाबी चो पहले सुन ले तो फिर 2 दफा, ठीक है ना। खुदा ने कहा पहले सुन और फिर दूर हो, ताकि खुदा ने कहा क्योंकि लिखा है तू सिर्फ खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर, सिर्फ उसी की इबादत कर। और ये यहूदियों के लिए खुदा ने कहा था कि किसी तराशी हुई मूरत को सजदा ना करना, ना आसमान पर ना जमीन पर। तो अगर सजदा करना तो सिर्फ खुदा उनके आगे सजदा करना। इसलिए खुदा अपने बराबर किसी को नहीं आने देता। तो मेरे बच्चों, अगर हमने आज अपनी जिंदगी में सोचना है, गौर करना है, तो फिर खुदा ने कलाम में लिखा है कि लिखा है हमारी नसीहत और हमारी तरबियत के लिए हर बात खुदा के कलाम में लिखी हुई है। इससे बड़ा कोई कलाम नहीं है, और ये खुदा ने कलाम हमें दिया है। खुदा ने सब चीजों से ज्यादा इज्जत किसे दी है? सिर्फ अपने कलाम को। और खुदा के कलाम में अपनी जिंदगी में ये बात रख लीजिए कि लिखा है हमारी नसीहत और हमारी तरबियत के लिए। अगर हम बाइबल से नहीं हटेंगे तो फिर हम शैतान का सामना कर सकेंगे। यहूदा अस्करियोती की जिंदगी में थोड़ा सा लालच था, इस वजह से वो हट गया, और हटने के बाद हुआ क्या उसके साथ, उसने अपनी जिंदगी को हमेशा की मौत की तरफ ले गया। और फिर लिखा है जकरिया की किताब में देखेंगे, बेटा जकरिया 11 बाब की 12 आयत में, जी बेटा निकालिए, जी तिलावत कर लीजिए। जकरिया उसका 11 बाब और 12 है। और मैंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी नजर में ठीक हो तो मेरी मजदूरी मुझे दो, नहीं तो मत दो। और उन्होंने मेरी मजदूरी के लिए 30 रुपये तोल कर दिए। तो ये पुराने आयतनामे में 30 रुपए तोल कर, ये कीमत उसकी अज़ल से लिखी हुई थी। लेकिन यहूदा अस्करियोती क्या कर रहा था? वो रेट ज्यादा करने की बात कर रहा है। लेकिन ये कीमत तो जकरिया की किताब के अंदर मनोमन लिखी हुई थी, और यहूदा अस्करियोती ने इस बात पर गौर नहीं की। और ये सब कुछ उन्हें तब याद आया जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, खुदा में यीशु मसीह मसलूब हो गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जब जी उठा तो अपने शागिर्दों से दोबारा मिला तो उनके दिल खुशी से भर गए। और जैसे खुशी से भर गए तो उन्हें वो सब बातें याद आई जो यीशु मसीह ने सहीफों को खोल खोल के उन्हें तरबियत की, ताकि उन्हें ये सब बातें याद आई। ये तो सब कुछ खुदा यीशु ने अपनी हयात के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर हमें एक एक नसीहत की थी, तरबियत की थी, ताकि मैं ऐसे पकड़वाया जाऊंगा, ऐसे मसरूफ किया जाऊंगा, ऐसे दुख उठाऊंगा और ऐसे मुझे सलीब पर दिया जाएगा। तो ये सब कुछ उन्हें बातें याद आई। लेकिन यहूदा अस्करियोती ये सब कुछ जानता था,
ये सब कुछ जानता था, क्योंकि ये तो पेशन गोई पहले लिखी हुई थी। और उसने क्या किया, उसने 30 रुपए जब इब्लीस ने उसे ठीक तरीके से इस्तेमाल करके खुदा में यीशु मसीह पकड़ा गया, सलीब के ऊपर दे दिया गया, तो जब इब्लीस उसके अंदर से निकला ना, तो उसे होश आया। यहूदा अस्करियोती को जब होश आई कि ये मुझसे क्या हो गया, मैंने ये क्या किया, तो वो 30 रुपए लेकर सरदार कहनों के आगे जाके फेंक देता है। वो कहता है ये कीमत मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इब्लीस अंदर से निकल गया। इब्लीस ने जान छोड़ दी। जो इब्लीस जो हमारी जिंदगियों के अंदर समाता है, जब तक उसका टारगेट होता है वो हमारे अंदर रहता है, और जैसे वो अपना टारगेट पूरा कर देता है वो जिंदगियों से निकल जाता है, वो जिंदगियों से निकल जाता है। और जैसे वो जिंदगी के अंदर से निकला, उसे होश आया, उसने कीमत जाके फेंकी, और सरदार कहनों ने कहा इस कीमत को उठा, भाग यहाँ से निकल बाहर, ये तो खून की कीमत है, ये हम नहीं ले सकते। तो जैसे पेशन गोई लिखी थी वैसे ही वैसे पूरी हुई। उसने उस 30 रुपए के जमीन खरीदी, ताकि जो मुसाफिर जो लोग आएंगे बाहर से, जो उस इलाका के अंदर मर जाएंगे, ताकि उस 30 रुपए के जमीन के अंदर वो उन्हें दफन करेंगे। और ये पेशन गोई ऐसे ही लिखी हुई थी। और यहूदा अस्करियोती ने किया क्या, अब वो सोच रहा है मैं क्या करूं, क्योंकि इब्लीस ने जान छोड़ दी है। अब वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं, 11 शिगिर्दों को क्या मुंह दिखाऊं, यीशु मसीह की मां को क्या मुंह दिखाऊं। वो नहायत परेशान है। इब्लीस ने जान छोड़ दी है और खुदा ने भी छोड़ दिया है। लाइफ के टर्म, हमारी लाइफ के अंदर एक टाइम ऐसा आता है खुदा भी छोड़ देता है, इब्लीस भी छोड़ देता है। हम सिसक कर जीने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी कमजोरियों को खत्म नहीं करते। यहूदा अस्करियोती ने अपनी कमजोरी को खत्म नहीं किया, अब खुदा ने भी छोड़ दिया, अब शैतान ने भी छोड़ दिया। अब उसने कहा, इतनी शर्मिंदगी उसकी जिंदगी के अंदर, उसने कहा मैं क्या करूं। उसने सोचा अब मैं फांसी लूंगा और मैं मर जाऊंगा। तो उसने कहा फांसी लेनी है तो ले, तूने मरना है, मैंने थोड़ा मरना है। अपनी कमजोरियों की वजह से अगर तू मरना चाहता है तो मर। और मेरे चीजों यहूदा अस्करियोती ने अपनी गले में रस्सा डाला, फांसी ली, मर गया, अंतमियां बाहर आ गई। और अगर वो इस बात पर गौर करता कि लिखा है, उसकी बाबत लिखा है कि उसकी 30 रुपए कीमत होगी, वो हमारे लिए दुखों को सहेगा, सलीब पर चढ़ाया जाएगा। ये तो उसके लिए नबियों पैगंबरों ने सभी ने पेशन गोई की थी। यहूदा अस्करियोती जानता था। इसलिए आज का जो मैसेज है, जो आज का कलाम है, अगर मेरे बच्चों आप खुदा के कलाम से, बाइबल से नहीं हटेंगे, आप जानेंगे क्योंकि ये लिखा है, तो फिर खुदा आपको सरफराज करेगा। खुदा अपनी बरकतों से आप मालामाल कर हो जाएंगे, और हमेशा आप खुदा में बढ़ते जाएंगे, और हर तरह के आप पुलिस के मंसूबों को कुचलेंगे और उस पर गालिब पाएंगे। आमीन। आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको